sitting calmly after having this lunch, and now everybody wants tea. Still, you are sitting here for this presentation. So, heartily indebted to all of you, and my warm regards to all the delegates there that are sitting here. And as sir says that this is a case, actually I am talking on to hyperkalemia. And being an acupuncturist, we are reluctant to take such type of the cases where we want to work on to blood component. And for me also, this was a very rare case. And the patient was very confident. I said that I have never done this type of a case, but she was referred by old patient, and she said कि नहीं उन्होंने बोला है कि आप वहाँ जाओगे ना तो ठीक ही हो जाओगे. So it is because of the patient that she insisted to take this case. I took this, and I am happy that I could have good result into this. But of course, I would like to also, I don't have any shame in telling that I have to read a lot before making a treatment protocol for her, because this case was very new for me as well. So I had to read. Day one I did a normal acupuncture that I know, but second day before the patient came, I had read everything that I got on the net. I discussed it with my mentor of acupuncture, and then I did the treatment, and then this is the case that I am presenting to all. So it will be very clear to the patient and tell them clearly they are also ready to cooperate with us. So TCM perspective of hyperkalemia, that is potassium and its treatment. What is this actual condition? It is a medical condition in which the level of potassium, the ions in the blood sugar is higher than the normal, and it is called as hyperkalemia. Occurs when potassium level exceeds 5.5 and equal per liter. So that is equal per liter. This is the range. If it exceeds, it is called as the potassium level has increased into your blood. The causes that are generally found to patients with those who are having excess potassium level is causes. The first cause is the kidney dysfunction or failure, but very rarely this happens. It is not very common to have high potassium levels. Reason that the kidney function is having a problem. Most commonly causes that we see is hormonal imbalances. Especially example, the aldosterone deficiency. Because if there is an aldosterone deficiency, then the ratio of the potassium and sodium is changed. The sodium levels, because of the sodium levels, the potassium levels are increasing. So there is an imbalance into the potassium and the sodium levels, because of which there is a hormonal imbalance and the potassium is increased. Sometimes some medications also will also be a reason for this potassium increase in potassium level. That is ACE inhibitors, potassium sparing diuretics, especially that are given to kidney patients. Sometimes that may also result into high potassium levels. Then dietary factor, which we are going to talk further in this presentation, that dietary factors are also responsible for excessive potassium intake. So we have to see that what dietary changes we have to make into the patient, what the patient has to reduce or have to stop, and what they have to take. What is important is what they have to take, because all doctors will tell them what not to take, but what to take is also very important. That is, in the morning also Dhani said the same thing. We need people like Dhani who can say that what to have, right? Then the next cause is the cellular breakdown. Also is one of the reasons for hyperkalemia. That is, during any traumas, accident or burns also, there can be an increase into the potassium level. I am okay or flow reduce करूँ? धीरे कर, ठीक है. Okay. So इसका symptoms जो होते हैं, मेरे पेशेंट में क्या symptoms है मैं वो भी बताऊंगी, पर जनरल symptoms जो पेशेंट में इसमें होते हैं, that is muscle weakness और fatigue होता है. Abnormal heart rhythms होता है, arrhythmias, या तो bradycardia होता है या tachycardia होता है, that can दोनों में से कोई भी हो सकता है. Palpitations होते हैं, chest pain होता है, numbness and tingling sensation patient complain करता है, abdominal cramps complain करता है, nausea and vomiting भी हो सकती है. Not all symptoms, but some of the symptoms you can have into the patient जिनका potassium level increase है. Severe symptoms जो rare होते हैं, severe symptoms में potassium level को अगर आपने उसको
भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर पैरालिसिस भी हो सकता है। सीवियर सिम्टम्स बहुत कम लोगों में देखे जाते हैं। अभी कमिंग टू माय केस, ये जो पेशेंट जिसको ट्रीटमेंट किया गया है, ये 56 इयर्स ओल्ड की पेशेंट थी, फीमेल पेशेंट, होम मेकर। उनका चीफ कंप्लेंट यही था कि उनका पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो रखा है। उनके जो सिम्टम्स थे, जो जनरली सिम्टम्स क्या होते हैं वो हमने आगे वाली स्लाइड में देखे। मेरे पेशेंट को जो सिम्टम्स थे, इंसोम्निया थी, नींद नहीं आती थी उनको। नर्वनेस, और सबसे ज्यादा उनको यही था कि मुझे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो कि मैं सो सकूं, एंड एवरीबॉडी नोज दैट स्लीपिंग इज अ ब्लिस। तो उनका मेन ये था कि मैं और कुछ हुआ नहीं, वो मुझे नींद आने लग जाए तो भी आई एम सॉर्टेड आउट। तो इंसोम्निया का उनको बहुत प्रॉब्लम था। नर्वनेस इन फूड, हेडेक था, फटीग, कैचिंग कोल्ड, इजीली जल्दी से उनको ठंड लग जाती थी। एसी अगर चालू किया तो बोलते तुरंत बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग था उनको, गैस था, कॉन्स्टिपेशन था, ब्लड विजन एंड ड्राई माउथ। ये सारे सिम्टम्स थे पेशेंट का जिसको हमने ट्रीट किया। और ड्यूरेशन ऑफ दिस डिजीज, 2 साल से वो इस डिजीज से सफर कर रही थी और 2 साल से वो मेडिकेशन पे भी थी। दवाइयाँ तो उनकी चल ही रही थी। हमने ट्रीटमेंट के दौरान उनकी दवाइयाँ बंद नहीं की हैं। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में हाइपरकाइमिया के वेस्टर्न डायग्नोसिस भी हमको देखने पड़ेंगे और एक्यूपंक्चर डायग्नोसिस भी हम देखेंगे। तो वेस्टर्न मेडिकल डायग्नोसिस के लिए हमको ब्लड टेस्ट करवाना है, जिसमें जो नॉर्मल रेंज है वो भी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी। तो वो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी कितना है, पोटेशियम लेवल ज्यादा है या कम है या नॉर्मल है। सिम्पटम इवैल्यूएशन करने होते हैं, सिम्टम्स भी हमने देखे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उन पेशेंट में। उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी हमें देखनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में वही कि भाई नर्वनेस है, टिंगलिंग है, क्या है वो पता चलता है। जरूरत पड़े तो ईसीजी भी हम देखते हैं पेशेंट का, और इमेजिंग टेस्ट। कमिंग टू द एक्यूपंक्चर डायग्नोसिस, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो आगे हमने बनाया वो इसी के बेसिस पे बनाया हुआ है। तो मेन कॉजेज जो एक्यूपंक्चर डायग्नोसिस के हैं, स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, क्योंकि द स्प्लीन इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लूइड मेटाबॉलिज्म। यस और नो? Yes. So spleen G deficiency is responsible for fluid metabolism and electrolyte balance as well. A deficiency in spleen G can lead to imbalance in the potassium level. The second diagnosis is kidney G deficiency. Not only spleen G deficiency, but kidney G deficiency से भी potassium levels में जो है वो changes आ सकते हैं. A kidney play a crucial role in regulating electrolyte levels, including potassium. A deficiency in kidney G can disturb this balance. इवन जो हमने आगे एल्ट्रोस्टोन का हमने बात किया, तो वो कहाँ, किडनी की टोपी है ना एड्रिनल, वहीं से तो सीक्रेट हो रहा है वो हार्मोन, राइट? सो इसलिए किडनी जी डेफिशिएंसी से भी पोटेशियम लेवल्स में चेंज आ सकता है। थर्ड इज लीवर जी स्टैग्नेशन। लीवर जी स्टैग्नेशन कैन लीड टू एन इंबैलेंस इन द ब्लड्स वाटर मेटाबॉलिज्म, अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स एंड इंक्लूडिंग पोटेशियम एज वेल। चौथा हमारा है ब्लड स्टेटस। Blood status can lead to accumulation of toxins, including excess potassium. अभी जो भी symptoms हमने मेरे पेशेंट में देखे थे, it was combination of all this four. इसलिए हमने इन सब चीज के पॉइंट उनको दिए हैं। इसके अलावा ये भी जो डायग्नोसिस होता है, that is excessive dampness की वजह से हो सकता है। Excessive dampness in the body can lead to an imbalance into electrolyte levels, including potassium. Food stagnation से भी हो सकता है। Food stagnation can lead to an accumulation of toxin, including excess potassium. Third is emotional stress. Emotional stress भी one of the reason है potassium level increase होने का। Emotional stress can disturb the body's balance, leading into an increase in potassium level. And the fourth is environmental factors. Exposure to environmental toxins such as pesticides and heavy metals. तो पेशेंट को हमने ये भी क्वेश्चन किया था कि वो कहाँ रहते हैं। पहले तो उन्होंने बोल दिया हाउस वाइफ है, तो जॉब का एरिया तो पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो कौन से एरिया में रहते हैं वो भी पूछा। वहाँ पर कोई केमिकल, क्योंकि हमारे बड़ौदा में जो है वहाँ पर आईटीशर भी है, पेट्रोफिल्स भी है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने उनको किया था कि भाई वो कहाँ पर रह रहे, ताकि हमको पता चले कि एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स तो उसका रीजन नहीं है क्या। तो पेस्टिसाइड्स से हेवी मेटल्स कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन पोटेशियम लेवल्स। सो अब हमारा आता है ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। तो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में 3 प्रिंसिपल पे हमने इसमें काम किया है। नंबर 1 है क्लियर हीट एंड रिमूव टॉक्सिन, दूसरा रेगुलेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एंड तीसरा टोनिफाई जी एंड इन। तो क्लियर हीट एंड रिमूव टॉक्सिन, हाइपरकाइमिया इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एक्सेस हीट and toxins in the body. TCM aims to clear this heat and remove toxins to restore
रिस्टोर बैलेंस। मुझे पता है आप सबको क्लियर हीट करने के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पता है, फिर भी हम अभी आगे देखेंगे। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। TCM seeks to regulate fluid metabolism and electrolyte balance to address hyperkalemia। और तीसरा चीज जो हमने टोनिफाई किया ची एंड इन को, helps restore body's energy and balance। टोनिफाई ची हाई कौन सा पॉइंट है TCM का? रेन 6। तो हमारे प्रोटोकॉल में आगे है डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच था। टोनिफाई किया हमने सब पॉइंट्स टू टोनिफाई, हमने जो इनको टोनिफाई करने के लिए जो हमने पॉइंट्स लिए वो K3 लिया, टोनिफाई किडनी इन, ताकि किडनी इन टोनिफाई हो, इसलिए हमने किडनी 3 का पॉइंट लिया, which regulates fluids and ear dampness and treats insomnia। मेरे पेशेंट का सबसे पहले क्या था कि मुझे नींद आनी चाहिए, तो हमने उसका फर्स्ट पॉइंट जो हमने किया है वो हमने किडनी 3 लिया है, ताकि उसका किडनी चीज जो है वो भी टोनिफाई हो जाए, उसका जो फ्लूइड है वो भी रेगुलेट हो जाए और उसको नींद भी आने लग जाए। सेकंड पॉइंट जो इस प्रोटोकॉल में हमने यूज किया है दैट इज किडनी 7 which treats numbness and pain in lower extremity। ये पेशेंट को numbness and pain दोनों ही था lower extremities में, and specifically in the foot वो बता रही थी। So this will also maintain fluid balance जब हम K7 लेंगे तो। इसके अलावा हमने स्प्लीन 9 दिया है। स्प्लीन 9 जो है वो स्प्लीन की ची को टोनिफाई कर रहा है और फ्लूइड को रेगुलेट कर रहा है, प्रमोट्स डायूरेसिस। तो ये सारे किडनी पेशेंट्स में भी हम इसको यूज करते हैं स्प्लीन 9 बिकॉज इट इज प्रमोटिंग डायूरेसिस। देन जी हाई, जैसे अभी आपने ही आंसर दिया कि जी हाई जो है सी ऑफ ब्लड है, वो हमने इसमें टोनिफाई ची इज डिफरेंट एंड सी ऑफ ब्लड इज डिफरेंट। सी ऑफ ब्लड कौन सा पॉइंट है? पॉइंट लिखा नहीं मैंने यहाँ पर। सी ऑफ ब्लड कौन सा है? करेक्ट, SP10 है ना। सो सी ऑफ ब्लड इज स्प्लीन 10 पॉइंट यहाँ पर हमने दिया है। टोनिफाइज लीवर इन, रेगुलेट ब्लड एंड क्लियर्स हीट। फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए हमने यहाँ पर ST40 एंड ST36 दिया है, ताकि हम जो हीट है ब्लड में उसको भी क्लियर कर सकें, और जो फ्लेम है ST40 स्पेशली हमने यहाँ पर फ्लेम के लिए दिया है रिजॉल्व फ्लेम। और टू रेगुलेट फ्लूइड को रेगुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर पेशेंट को स्प्लीन 6 पॉइंट दिया है, व्हिच इज अ नरिशिंग पॉइंट, रिजॉल्व्स फ्लेम एंड रेगुलेट्स फ्लूइड। जी को टोनिफाई करने के लिए हमने उनको CV6 दिया। बैकशू पॉइंट में हमने ब्लैडर 22 एंड 23 दिया, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, रिड्यूसेस एडिमा एंड टोनिफाई द स्प्लीन। दोनों बैकशू पॉइंट लिए हमने ये। एडिशनल पॉइंट्स भी हमने यहाँ पर दिए हैं पेशेंट को, डेली सारे पॉइंट्स नहीं दिए हैं, सेट ऑफ पॉइंट जैसे एडिशनल पॉइंट हमने डेली नहीं दिए हैं। हमने अगर इनको किडनी 3 दिया है तो स्प्लीन 9, स्प्लीन 6, ST40 36 एक दिन दिया है, बाकी के पॉइंट जो हमारे यहाँ को दूसरे दिन दिया है। एक ही दिन में सारे पॉइंट्स नहीं दिए हैं पेशेंट को, ग्रुप 2 करके हमने पॉइंट्स दिए हैं पेशेंट को। एडिशनल पॉइंट्स हमने टू रिड्यूस हीट एंड रिजॉल्व फ्लेम के लिए LI4, LI11, ST44 और गॉलब्लैडर 20 दिया है, जो रेगुलेट करेगा फ्लूइड सर्कुलेशन को और एडिमा को रिड्यूस करेगा एंड काम्स द स्पिरिट। तो ये हमारा टोटल जो हमारा TCM का जो अप्रोच था वो यहाँ पर है। लेकिन कल से हमने इतने सारे स्पीकर्स को सुना यहाँ पर, तो हमने क्या सीखा कि सिर्फ TCM पॉइंट नहीं, हमको ऑलवेज इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना है। तो हैप्पी टू शेयर कि इस पेशेंट में हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया है। हमने डाइट भी दिया है, हमने चिकन भी किया है, हमने मेडिटेशन भी किया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। डाइटरी अप्रोच हमने यहाँ पर जो पेशेंट को दिया है along with the TCM पॉइंट्स, जो फूड डाटा लो इन पोटेशियम वो हमने इनको दिए हैं। वेजिटेबल्स में हमने इनको कुकुम्बर, बेल पेपर, कैरेट, ग्रीन पीस दिया है। फ्रूट्स में हमने इनको रिकमेंड किया एप्पल, पैर, ग्रेप, स्ट्रॉबेरीज। डेयरी प्रोडक्ट में हमने इनको योगर्ट लेने के लिए बोला है, चीज, पनीर लेने के लिए बोला है। ऑल काइंड ऑफ मिलेट कैन बी इंक्लूडेड इन द डाइट, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी। जनरली लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्लोर लेते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते हैं। उनको बोले कि ये आपको ये मिलेट्स लेने हैं, लेकिन सब मिक्स करके जिस दिन ज्वार ले रहे हो उस दिन ज्वार ही लो, जिस दिन मिलेट ले रहे हैं, जिस दिन मेज ले रहे हो उस दिन मेज लो, जिस रागी ले रहे हो उस दिन रागी ही लो। सो वी आर नॉट गिविंग टेंशन टू मिक्स ऑल द फ्लोर एंड टेक अ रोटी, अलग-अलग ही लेना है। तो ये उनको हमने रोटी के लिए ये सजेशन दिए। फूड टू एम्फसाइज में फूड डाटा नेचुरल हाई इन सोडियम, क्योंकि हमको यहाँ पर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस भी करना है। अगर पोटेशियम हाई हो गया है तो सोडियम आपका रिड्यूस हो गया है बॉडी में। सो हमने यहाँ पर स्पिनच वो बैलेंस करने के लिए स्पिनच, कैबेज,
मूली और नींबू पानी एडेड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट भी इनको दिया है। हर्बल टी लाइक जिंजर टी, कैमोमाइल टी भी सजेस्ट किया था। एंड ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग plenty of water to remove excess potassium from the body। बॉडी में से कुछ भी हमको ड्रेन करना है टॉक्सिन, तो नेचुरली हमको पानी चाहिए ताकि किडनी उसको फिल्टर कर सके। तो पानी का इंटेक उनका बहुत कम था। लगभग जब मैंने उनका हिस्ट्री लिया था तो वो सिर्फ 1.5 लीटर पानी पी रही थी पूरे दिन में। तो वो पानी का इंटेक भी हमने उनको बढ़ाया। फूड जो नहीं खाने वो तो सब डॉक्टर्स बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने उनको बताया ही था। लेना है वो बहुत पेशेंट बोलते हैं ये बताओ कि खाना क्या है, तो ये फूड्स है जो हमें नहीं लेने हैं, जो रिच इन पोटेशियम है, लाइक बनाना है, ल्यूबियम्स है, राजमा, चना, दाल, ये सब नहीं लेना है। ल्यूबियम्स दैट आर हाई इन पोटेशियम, लिमिट कंजम्पशन टू 1 or 2 cups पर वीक। टोटल वर्क नहीं किया है, लिमिट कर दिए हैं ये जो दालें हैं वो। नट्स एंड सीड्स लाइक काजू, बादाम, चिया सीड्स, ये भी अवॉइड करने हैं। कोकोनट वाटर से भी पोटेशियम बहुत जल्दी बढ़ता है। लाइक मेरे पास एक पेशेंट आए थे, आई डिडंट ट्रीट हर फॉर पोटेशियम, लेकिन उनका पोटेशियम इंक्रीज हुआ था और उन्होंने ये बोला था कि मैं 3 महीने से रेगुलर एक कोकोनट पी रही थी, जिसकी वजह से मेरा पोटेशियम लेवल हाई हुआ। तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अल्कलाइन करने के लिए रोज ही हम कोकोनट वाटर पी लें। तो मेरे पास ऐसा केस भी मैंने देखा है जो 3 महीने रेगुलर वो ले रहे थे, कोकोनट वाटर ले रहे थे, तो उनका पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया था। तो यहाँ पर हमने ये भी उनका हिस्ट्री लिया, वो इतना नहीं ले रही थी, फिर भी हमने उनको गाइड किया कि कोकोनट वाटर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, मम्किन सीड्स अवॉइड करने हैं, पोटैटोज अवॉइड करने हैं और स्वीट पोटैटो भी अवॉइड करना है। हर्ब्स जो है हमारे इंडियन हर्ब्स टू रिड्यूस पोटेशियम लेवल है, वो भी हमने सजेस्ट किए थे। इसमें से शायद उन्होंने 1-2 यूज किए होंगे, लेकिन दिस वाज द रिकमेंडेशन जो हमने उनको दिया था। डैंडियन रूट विच हेल्प्स रिड्यूस पोटेशियम लेवल बाय इंक्रीजिंग यूरिन प्रोडक्शन एंड प्रमोटिंग पोटेशियम एक्सक्रीशन। यहाँ पे पोटेशियम एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ट्रीटमेंट, तो इसलिए डैंडियन रूट उनको बोला लेने के लिए। पार्सले बोला which is rich in vitamins and minerals। parsley helps reduce potassium level by promoting urine production। आप देखो कोई भी फूड जो यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा वो पोटेशियम को रिड्यूस करेगा। फिर सेलेरी सीड्स भी दिए गए हैं उनको, जुपिनर बेरीज दिए गए, और ये उवा उसी, these are the herbal recommendation that we had given to the patient। This is the qigong exercise जो मैंने बोला ना कि हमने जिसमें सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया है पेशेंट के लिए। qigong प्रेजेंटेशन मैंने एक हफ्ते पहले सबको भेज दिया था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने सुन के ये भी ऐड किया है, प्रेजेंटेशन भेज दिया है। तो qigong जो है ये वो किया हमने। qigong में 2 एक्सरसाइजेस qigong की इस पेशेंट को हमने करवाई है। एंड पेशेंट जब घर, सारे पेशेंट एक जैसे होते हैं, अगर वो घर चले गए तो वो कुछ करने वाले नहीं है, तो ये एक्सरसाइजेस हमने उनको क्लिनिक पे ही करवाई है। और अगर आप भी ये ऐसा कोई केस करें तो मेक श्योर कि आपके सामने वो करें, घर जाके कोई पेशेंट कुछ नहीं करता है। सो द फर्स्ट qigong एक्सरसाइजेस इज ट्री हग। तो ट्री हग कैसे करवाया, तो स्टैंड विद, ये फोटो में भी दिख रहा है आपको, स्टैंड विद फीट शोल्डर विथ अपार्ट, आर्म्स wrapped around an imaginary tree trunk। वहाँ पर क्लिनिक में ट्री तो नहीं है ना, लेकिन हम उनको बता रहे हैं कि आप इस तरह से करो, लाइक यू आर हगिंग अ, थोड़ा सा करके बता सकते हैं It's just hugging a tree। आपका अगर वहाँ पर पिलर है आपके क्लिनिक पे, तो उनको बोलो कि वो ये सोचे कि वो ट्री को हग कर रही है, और अगर वो एक्चुअल ट्री को करेंगे तो रिजल्ट और फास्ट मिलेगा। तो आप उनको बोल सकते हो कि आप घर पे करो, पर अभी हमको उन पे भरोसा नहीं है इसलिए हम क्लिनिक में करवा रहे हैं। तो अगर क्लिनिक में पिलर है तो tell the patient to hug it। So it should be exercise like you are hugging it, right? So with breathing, inhale deeply। जब हम ट्री को हग करें उस टाइम पे हमको इस चीज का ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है। इनहेल डीपली फोकसिंग ऑन द किडनी, एक्सहेल स्लोली। जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस है वो सारा ड्रेन हो रहा है, ये हमारे दिमाग में होता है। हम इनहेल कर रहे हैं, हम किडनी को टोनिफाई कर रहे हैं, जब एक्सहेल कर रहे हैं तो किडनी सारा कुछ जो है वो एक्सक्रीट कर रही है, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हमारा ट्री हग एक्सरसाइज qigong का हमको करवाया है। ये एक्सरसाइज करने से calms the mind, regulate kidney function and helps balance potassium level। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम लेवल के लिए किया था, लेकिन एनी डिजीजेस ऑफ द किडनी जिसमें आपको रेगुलेट करना है किडनी फंक्शन को, बाल तो सबके झड़ रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं है? तो जिनके बाल झड़ रहे हैं उनको भी ये ट्री हग करना चाहिए, तो बाल झड़ना आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज से काम होता है माइंड, किडनी का जो फंक्शन है वो रेगुलेट होता है और पोटेशियम
तो होता ही है। सेकेंड एक्सरसाइज चीगोंग की जो हमने की है, पुशिंग द माउंटेन, राइट? तो पुशिंग द माउंटेन अगर कोई करना चाहता है, शर्मा जी आप करना चाहते हो तो इस वाले पिलर को माउंटेन आप कर लो। आ जाइए करिए प्लीज, है ना? आ जाइए। इसमें कोई 30 It's okay. You please carry on. हाँ, अदरवाइज यू कैन टेक ओनली 30 सेकंड्स। तो वो एक पुशिंग द माउंटेन वही है कि आप जस्ट माउंटेन है सोच के और आप थोड़ा सा पैर आगे पीछे रखिए ताकि पुश करने में हमको अच्छे से पुश हम कर सके इस तरह से, है ना? ब्रीथिंग भी है, आप जो आपको पहले इनहेल करना है और पुश करते समय आपको एक्सहेल करना है इस तरह से। तो अगर पिलर है तो पिलर पुश करवाओ या तो फिर जस्ट उसी तरह से आप कर सकते हो। स्टैंड विद फीट शोल्डर विद अपार्ट, आर्म्स एक्सटेंडेड इन फ्रंट ऑफ यू, मूवमेंट स्लोली पुश योर आर्म फॉरवर्ड, इमेजिन यू आर पुशिंग अ माउंटेन, देन स्लोली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन, ब्रीथिंग, इनहेल ड्यूरिंग द पुशिंग मोशन, एक्सहेल ड्यूरिंग रिटर्निंग मोशन में आपको एक्सहेल करना है। ये इससे भी किडनी का फंक्शन स्टिमुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है एंड हेल्प्स रेगुलेट द पोटेशियम लेवल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने पेशेंट को करवाया है, चीगोंग एक्सरसाइज करवाई है। ईच एंड एवरी वाइटल ऑर्गन इन आवर बॉडी इज हैविंग अ साउंड। तो किडनी का जो साउंड है दैट इज चू। तो अगर किडनी रिलेटेड कोई भी पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं या किडनी से रिलेटेड कोई भी इथियोलॉजी को हम ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो हेयर फॉल हो या इनफर्टिलिटी हो या बोन्स के का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन सभी पेशेंट को भी आप ये साउंड करवा सकते हैं। इसमें हम पेशेंट को खाली साउंड करना है, सी और किडनीज। मैं बोल रही हूँ तो भी पैल्पिटेशन होगा, आप करोगे तो 100% होगा। बन सकता location का focus on the kidney located in the lower back, breathing, inhale deeply then exhale slowly while making the chew sound. Many people want to go to the washroom now. That's good, toxin will be drained out. And you can, अगर टॉक्सिन ड्रेन हो जाए तो प्लीज आप मयंक सर को दे दीजिएगा, वो मैं फिर दे दूंगी। और पोटेशियम कम हो जाएगा तो फ्री ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पे आ जाओ। Stimulate kidney function, helps regulate potassium level and promotes overall well-being. So ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर रिजल्ट है, यहाँ पर बिफोर आफ्टर रिजल्ट आप देख सकते हो। नंबर ऑफ सेशन जो पेशेंट को ये दिए 20 सेशन विदाउट एनी गैप दिया है मैंने। 20 सेशन रेगुलर मैंने बुलाया क्योंकि उनका बेटा जो था वो अमेरिका था, उनको यूएस जाना था 20 सेशन के बाद, इसलिए मैंने बीच में कोई गैप नहीं दिए। नहीं तो 12 सेशन के बाद मैं 1 वीक का गैप देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पेशेंट को बुलाती हूँ। लेकिन इनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए 20 सेशन विदाउट एनी गैप हमने इनको दिए हैं। और ये रिजल्ट्स हैं उनके कि ये उनका पहले जो था और अभी था 5.4 था और बाद में 4.8 हो गया था उनका। और रिकमेंडेशन एक्सरसाइज सब कुछ उनके पास था ही। तो अभी फॉलो और व्हाट्सएप पे मेरा उनके साथ फॉलो होता है। शी इज परफेक्टली फाइन एज ऑफ नाउ। सो दिस आर द Thank you for innovative and integrated approach as is the theme of our AccuWorld. So I would encourage all of you to do an integrative approach, and just a mention about these two Qigong exercises about hugging the tree and pushing the pillar. It is always your intention. Always remember Qigong, Tai Chi always has an intention. If you just do this, it doesn't work. So what is the intention of hugging the tree? It is a Japanese system of hugging the tree. So basically trees are grounded and trees are communicating with earth. Now when you are hugging the trees have a power to absorb all your negative vibrations and ground it, just like you would ground excessive charges, electric charges. So from your body,
your electrical charges are grounded by hugging a real tree. So now, if you are even imagining a tree, so you have to really imagine hard कि मैं ये गुलाब का पेड़ है उसको हग कर रहा हूँ। गुलाब का पौधा रहेगा, पौधा रहेगा सर, झाड़ नहीं। So, Dr. Rumi Behram's suggestion is to not to hug a tree but to hug someone's I'm grounded. That person need to be grounded. So anyway, the logic is that you have to, the tree is like connected to the earth, the roots are connected, the branches are in the heaven, so it's really a earth-heaven connection which can ground you. And I have actually tried this in the Himalayas where there are big trees. It was a 30-minute meditation, and after that your mind is so calm. It's an amazing experience. So thank you very much for your Just presentation. two invitation before I leave the stage. आपको मेरे प्रेजेंटेशन में थोड़ी कंपन महसूस हुई होगी कहीं कहीं पे, तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा घबराई हुई थी क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर योगेश कोडकारी, जिसको हम दादा बोलते हैं, उन्होंने बोला सिर्फ तेरा प्रेजेंटेशन सुनने के लिए मैं आज आया हूँ। सो इट वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर। एंड सेकेंडली मेरे जो MCA के जो मेरे इंटरव्यूअर हैं डॉक्टर जैन जी, वो भी सामने थे, तो मुझे ऐसा लगा था मैं दोबारा इंटरव्यू दे रही हूँ। तो वो जो थोड़ा महसूस हुआ, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। थैंक यू फॉर बियरिंग विद इट। थैंक यू सो मच।